Welcome to our series called GMAT Master, where you and I sit down together and try to master whatever we do. So, in this series, we are, of course, diving into a lot of different question types, but one of the most important and foundational question type is the one that we plan to focus on today, and that is identify the assumptions. Now, I'm calling it foundational because there are quite a few other question types that truly depend on your ability to perform well at this question. So, you want to go ahead and conquer, strengthen the argument, weaken the argument, identify the logical flaw. All of these are very intricately, very closely linked with your ability to identify the assumptions. For that matter, even when it comes to similar structure or parallel structure arguments and inference based questions, this is one ability that definitely helps you indirectly. So let's go ahead and practice a few of these questions together. Don't think of it as spectator sport. I am going to pause I'll at least ask you to pause at some appropriate position points, and then I would expect you to go ahead and solve it, work on it. So, but before that, let me just quickly run you through what an assumption is. So we know that in an argument, you happen to have a conclusion that is backed by some premises. However, there are times when some of the premises that we have used to arrive at that conclusion are left unstated. So when the examiner asks us to identify the assumption involved in an argument, we are basically being asked to figure out that unstated premise. And of course, if you've been working with me, then you already know that it presents a new piece of information which is necessary for the argument. And whenever we are stuck between two answer choices, we use that characteristic, that property of being necessary uh, to eliminate options using the negation test. So we'll of course go ahead and work on that accordingly. But here is your first question. Why don't you pause the video here, solve it, and once you are done, come back, join me, and we will discuss it. Ready? Let's go. So the economist's argument makes which of the following assumptions? So there is an argument by an economist. We need to go ahead, isolate it, figure out the conclusion and the premises, and then we can work. So starting with the paragraph, bank depositors in the United States are all financially protected against bank failure because the government insures all individuals' bank deposits. All right. So here is a piece of information that we have here. Bank depositors are financially protected against bank failure. So if I have deposited money in a particular bank and somehow the bank goes out of business, my money is safe because the government insures my bank deposit. I will get that money. Now, an economist argues that this insurance is partly responsible for the high rate of bank failure. So here is the conclusion. This insurance is partly responsible for the high rate of bank failure. So this insurance is in a way promoting the failure of the banks. Why? The reason cited is it removes from depositors any financial incentive to find out whether the bank that holds their money is secure against failure. So that's your premise. Then let's read further. If depositors were more selective, then banks would need to be secure in order to compete for depositors' money. So that's premise 1. This is your premise 2. And I have already highlighted the conclusion. ओके सो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, हमको बताया गया कि यार एक ना यूएस में सरकार आपका बैंक डिपॉजिट के पैसे को इंश्योर कर देती है, इसकी वजह से अगर बैंक डूब भी गया तो आपका पैसा वापस आ जाता है। और ये जो पॉलिसी है इसकी वजह से बैंक्स का फेलियर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है चेक करने का कि जिस बैंक में वो पैसा जमा करवा रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं है ना। ऑब्वियसली भाई अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो क्या होगा, डूब जाएगा पैसा। अगर वो बैंक बंद हो जाएगा तो पर पैसा तो नहीं डूबेगा ना, क्योंकि वो तो मिल ही जाएगा। तो अगर डिपॉजिटर्स थोड़ा सिलेक्टिव हो जाएं, वो अगर ये सोचना शुरू कर दें कि यार मैं तो उसी बैंक में पैसा डालूंगा जो सेफ हो, सिक्योर हो, तो फिर बैंक्स को भी कंपीट करना पड़ेगा डिपॉजिटर्स मनी के लिए, और उस केस में उन्हीं बैंक्स को पैसा मिलेगा जो सेफ है, सिक्योर है।
तो ऑब्वियसली एक टेंडेंसी होगी ना बैंक्स में अपने आप को सेफ सिक्योर दिखाने की, और इस वजह से फेलियर कम होंगे। बट चूंकि ऐसा नहीं है, लोगों को सोचना नहीं पड़ता, वो किसी भी बैंक में चले जाते हैं, तो एक तरह से इट इज वन ऑफ द रीजंस, पार्टली रिस्पॉन्सिबल लिखा है फॉर अ हाई रेट ऑफ बैंक फेलियर्स। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। अब देखते हैं इसमें अजम्पशन क्या है। लेट्स स्टार्ट विद ए बैंक फेलियर्स आर कॉज्ड व्हेन बिग बोरोवर्स डिफॉल्ट ऑन लोन रीपेमेंट्स। तो इसका इस आर्ग्यूमेंट से क्या लेना देना है? इसमें तो हम बोल रहे हैं कि लोग देख ही नहीं रहे बैंक सेफ है, सिक्योर है कि नहीं। ये तो बोल रहा है कि यार बैंक फेलियर का रीजन कोई और ही होता है, आप देखते तो भी आपको शायद ये दिखता नहीं है ना, तो फिर क्या बिग बोरोवर्स के डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी कैसे देखें? आप इनफैक्ट इसको नेगेट करके देख सकते हैं, बैंक फेलियर्स आर नॉट कॉज्ड व्हेन बिग बोरोवर्स डिफॉल्ट ऑन लोन रीपेमेंट्स। तो अभी भी इनफैक्ट इसको नेगेट करने के बाद तो और भी ड्यू डिलीजेंस फ्रॉम द ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो नेगेट करने से अगर ये नेसेसरी होता है इस आर्ग्यूमेंट के लिए, तो इसको नेगेट करने के बाद द एंटायर आर्ग्यूमेंट शुड फॉल अपार्ट। यहां सरप्राइजिंगली हम इसे नेगेट कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन हो रहा है, तो नेसेसरी तो डेफिनेटली नहीं है। सो ए कैन बी रूल्ड आउट। बी, a significant proportion of depositors maintain accounts at several different banks, irrelevant. Let's say a significant proportion does not maintain accounts at several different banks, तो भी इस argument को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। C, the more a depositor has to deposit, the more careful he or she tends to be in selecting a bank. तो सी जो है ये लिंक कर रहा है कस्टमर के बिहेवियर को। ये बेसिकली बोल रहा है कि नहीं, कुछ केसेस में कस्टमर्स जो हैं वो ध्यान देते हैं। कौन से केस में? जब उनको पैसा ज्यादा डिपॉजिट करना होता है। तो अगर किसी को 50,000 डिपॉजिट करना है, 10,000 डिपॉजिट करना है, वो शायद ज्यादा नहीं सोचेगा। बट इफ समबडी हैज टू डिपॉजिट से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपीज, देन दे गो अहेड एंड स्टार्ट लुकिंग एट दैट। बट इफ आई गो बाय दिस, तो ये तो जो हमारी प्रेमिस है जो बता रही है कि यार ये तो सिलेक्टिव है ही नहीं, ये तो ऐसे ही जाकर के कर देते हैं, तो ये तो इसको प्रेमिस के ऑपोजिट हो गया। प्रेमिस को डिस्प्रूव कर रहा है, प्रेमिस पे थोड़ा सस्पिशन कास्ट कर रहा है, तो ये तो आर्ग्यूमेंट को वीकन करेगा। एंड अजम्पशन नेवर वीकन्स द आर्ग्यूमेंट, सो यू कैन रिमूव दिस टू। हाउ अबाउट डी? द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट्स पेड टू डिपॉजिटर्स बाय डिफरेंट बैंक्स इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन बैंक फेलियर। ओके, सो ये बोल रहा है कि अब दो बैंक हैं यार, दोनों आपके जो डिपॉजिट्स हैं उन पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, है ना। अभी आप भी अपने आसपास देखेंगे तो यू नोटिस दैट देयर आर सम बैंक्स वुड से दैट ओके, वी आर गोइंग टू गिव यू अ 7.1% ऑन योर फिक्स्ड डिपॉजिट। देन देयर कैन बी सम अदर बैंक्स, लेट्स से सम कोऑपरेटिव बैंक व्हिच कम्स एंड सेज हे वी आर विलिंग टू गिव यू 9%. So what D says is that this difference is not a significant factor in bank failures. So does it act as an assumption? Let's negate it. Let's say that it is a significant factor in bank failures. So can I still arrive at the argument that the insurance is partly responsible for the high rate of bank failures? I can. In fact, negation does go on to in a way strengthen the argument. How? If a depositor is not looking at how secure a bank is, then chances are that he can be swayed by higher returns. तो जिस बैंक में रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, वो फिर सिक्योरिटी चेक करनी नहीं पड़ रही, वो तो उधर जाएगा, और वो बैंक्स यूजुअली कम सेफ होते हैं और इसीलिए वो बस्ट भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो या तो इररेलेवेंट बोलेंगे, या फिर नेगेशन इनफैक्ट स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वो भी देखेंगे, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हाउ अबाउट ई? Potential depositors are able to determine which banks are secure against failures. Now this is an assumption because जैसे ही मैं यहाँ पे बोलूँ क्या depositors figure out कर ही नहीं सकते, तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही गया। तो जब हम बोल रहे हैं कि depositors were more selective, depositors, so हम ये मान करके चल रहे हैं that it is possible for them to be selective, it is possible for them to find out whether the bank is secure against failure. अगर मैं बोलूँ यार ये पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए, तो फिर तो आर्ग्यूमेंट आ ही नहीं सकता था। तो इस नेगेट करते हमने देखा कैसे द इंटायर आर्ग्यूमेंट फॉल्स अपार्ट, एंड दैट इज व्हाट टेल्स अस दैट E is going to be the correct assumption here. This is the one which is necessary. So with that, let's now dive into our next question. Here it is. Once again, go ahead, pause the video, solve the question, and then hit play.
रेडी? देखना शुरू किया जाए? चलिए आइए, लेट्स गो. So birds have been, so which of the following is an assumption on which the argument relies? तो argument देखते हैं. Birds have been said to be descended from certain bird-like dinosaur species with which they share distinctive structural features. तो एक ये piece of information that talks about a belief. The fossil record, however, shows that this cannot be so, since there are bird fossils that are much older than the earliest bird-like dinosaur fossils that have been found. Okay, तो यहाँ पे जो शुरू से लेकर के यहाँ तक की है, इसमें हम बोल रहे हैं birds have, so इनको combine करें तो ये क्या आ जाएगा? Birds are not descended from certain bird-like dinosaur species with which they share distinctive structural features, because bird fossils that are much older than the earliest bird-like dinosaur fossils have been found. So basically we are talking about timeline. Okay, so इस timeline पे अगर हम देखें, so ये रहे bird fossils that have been found, और यहाँ पे कहीं हमें मिले bird-like dinosaur fossils. So therefore birds have not descended from these. तो इसमें आर्ग्यूमेंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि यार जो फॉसिल बाद में मिला, एक फॉसिल पहले मिला, तो जो बाद में मिला वो डिसेंडेंट नहीं हो सकता. और ये फॉसिल्स हैं. इसमें एक अजम्पशन और भी है कि व्हेन अ स्पीशीज एग्जिस्ट्स, दैट इज व्हेन अराउंड दैट टाइम व्हेन अ स्पीशीज एग्जिस्टेड, यू आर एबल टू गेट अ फॉसिल फ्रॉम दैट टाइम फॉर श्योर. है ना, कि ऐसा नहीं है कि बर्ड लाइक डायनासोर्स पहले एग्जिस्ट करते थे और फॉसिल नहीं मिले. राइट, तो ये हमारी कुछ एक दो चीजें तो यहाँ पे दिखी रही हैं, बाकी हम करके देखते हैं. चलिए आइए. ए, द बर्ड लाइक डायनासोर्स हैव नो लिविंग डिसेंडेंट्स. एब्सोल्युटली इररिलेवेंट. हम तो ये बोल रहे हैं बर्ड्स इनके डिसेंडेंट है कि नहीं, इनका कोई और डिसेंडेंट है नहीं है, does not even matter to us, you can rule it out. Okay, then B, there are no flightless dinosaur species that have the distinctive structural features shared by birds and bird-like dinosaurs. तो चलो इसको negate करते हैं. Let's say अब हमको पता क्या चला, there are flightless dinosaur species that have these distinctive structural features, but कहानी तो अभी भी वहीं की वहीं है ना. इनके फॉसिल बाद में मिले थे, इनके पहले मिले थे. हाँ, तो इसलिए ये नहीं है. तो नेगेट करने के बाद भी आर्ग्यूमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है. द आर्ग्यूमेंट कैन स्टिल बी मेड, बिकॉज द की थिंग हियर इज दिस टाइमलाइन, कि हमको ये फॉसिल्स आर फ्रॉम एन अर्लियर टाइम, दीज फॉसिल्स आर फ्रॉम अ लेटर टाइम. तो हटा दीजिए सी. देर आर नो बर्ड लाइक डायनासोर फॉसिल्स that are older than the bird fossils but have not yet been unearthed. नेगेट करके देंगे. हम बोल रहे हैं कि यार देर आर बर्ड लाइक डायनासोर फॉसिल्स दैट आर ओल्डर, मतलब फॉसिल्स हैं बर्ड लाइक डायनासोर्स के जो इन बर्ड फॉसिल से भी पहले के हैं. दे हैव नॉट येट बीन अनअर्थड, अभी तक मिले नहीं है बस. तो अगर ये ट्रू है कि ये फॉसिल्स तो हैं, हमें मिले नहीं है अभी तक, वो इससे भी पुराने हैं, तो फिर तो हम ये कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाएंगे कि बर्ड्स आर नॉट डिसेंडेड. उस केस में तो द आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि ये बाद में आए क्योंकि इनके फॉसिल्स आर ऑफ अ लेटर डेट, बट अगर वो पहले हो गए तो फिर देयर फॉसिल्स आर ऑफ एन अर्लियर डेट, व्हिच मींस दैट दे कैन नाउ बी अ डिसेंडेंट. तो ये नेसेसरी है. इसको जैसे हमने नेगेट किया, वी कुड नो लॉन्गर अराइव एट द कंक्लूजन, सो वी नो दैट दिस इज नेसेसरी. लेट्स कीप इट इन द रनिंग. डी, it could not have been the case that some birds were descended from one of the bird-like dinosaur species and other birds from another. Irrelevant. ये सिर्फ ये बोल रहा है कि सारे birds का common ancestor ही होगा, तो ऐसा नहीं है कि कुछ birds का एक ancestor होगा, कुछ का दूसरा. But that point is not even being debated here, so you can remove it. E, birds cannot have been descended from dinosaur species with which the birds do not share the distinctive structural features. Once again, this takes it beyond the scope of the argument. We are talking about those dinosaurs with which they share distinctive structural features. अब वो whether they can or cannot come from some other type of dinosaur with some other type of features is irrelevant to the argument. You can negate it and you can still, let's just change this. If I say birds may have been descended from dinosaur species, तो भी क्या फर्क पड़ा, हमने तो आर्ग्यूमेंट में तो इनका और बर्ड्स का कनेक्शन बैठा रहे थे ना.
तो वो अभी भी इंटैक्ट है, इसको नेगेट करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. सो यू नो दैट ई इज नॉट नेसेसरी. सो सी इज द ओनली वन विच टर्न्ड आउट टू बी necessary, and that is why C is the one that we should go ahead and mark as our answer to this particular question. So with that, let's now dive into our next question. Here it is for you. Go ahead, answer this, and then we will talk. Shall we start? आइए देखें. So the commentator's argument relies on which of the following assumptions? So what is the argument? Let's go and check that first. The theory of trade retaliation states that countries closed out of any of another country's markets should close some of their own markets to the other country in order to pressure the other country to reopen its markets. Okay. So the first sentence basically introduces a theory of what? Trade retaliation. When you retaliate, what do? आप पे अगर अटैक हुआ तो आपने भी फिर सामने वाले पे अटैक किया, वो रिटेलिएशन होता है. तो ये ट्रेड रिटेलिएशन है. सामने वाले ने आपके ट्रेड को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब आप भी उसके ट्रेड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें थियरी क्या बोलती है? दैट इफ वन कंट्री क्लोजेज आउट ऑफ एनी ऑफ अनदर कंट्रीज मार्केट शुड क्लोज सम ऑफ देयर ओन. the countries closed out of any of another country's markets should close some of their own markets to the other country. Okay, so कोई दो कंट्रीज उठा लेते हैं, जैसे कौन सी उठाए यार, आजकल तो नाम भी, चलो लेट्स से यूके एंड इंडिया, राइट. तो कल को अगर यूके ने ये बोला कि यार हम इंडियन टेक्सटाइल्स पे बैन लगा देंगे, हाँ, नहीं आने देंगे इनको अपने कंट्री में. सो इंडिया इज क्लोज्ड आउट ऑफ द यूके टेक्सटाइल मार्केट. तो फिर इंडिया बोलेगा अच्छा तुम बैन लगा रहे हो तो भाई हम भी तुम्हारे यहां से लेटेस्ट से जो स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं उन पे बैन लगा देंगे. तो तुमने हमारे लिए एक मार्केट का हिस्सा क्लोज किया अपना, हमने भी तुम्हारे लिए एक मार्केट का हिस्सा क्लोज कर दिया. अब ये क्यों करेंगे? इन ऑर्डर टू प्रेशर द अदर कंट्री टू रीओपन इट्स मार्केट. प्रेशर कि भाई देखो अगर तुम बैन लगाओगे हम भी बैन लगाएंगे, फिर तुम हटा लो. तो इनकी उम्मीद ये है, कोशिश ये है कि ये बैन हटा लें टेक्सटाइल वाला, फिर हम भी स्ट्रॉबेरी वाला बैन हटा लेंगे. ठीक है, तो ये थियरी है. अब इफ एवरी कंट्री एक्टेड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अब देखो यहां पे हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, हम रियल सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं. इफ एवरी कंट्री एक्टेड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, नो कंट्री वुड ट्रेड विथ एनी अदर. तो ये थियरी हो गई. उसके बाद में इसने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना करके आपको बोला कंक्लूजन कि यार अगर सब इस पे काम करने लग गए तो फिर कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करेंगी ही नहीं. तो यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि इसने आप पे बैन लगाया, आपने इस पे बैन लगाया, अब उसके बाद में क्या करेगा ये, या तो कि ये बैन हटाएगा नहीं आप पे, ये इनफैक्ट अब आपको प्रेशर करने के लिए किसी नई आइटम पे बैन लगा देगा. जब ये नई आइटम पे बैन लगाएगा तो फिर आप भी इसकी किसी और आइटम पे बैन लगा देंगे और आगे बात बढ़ते बढ़ते फिर दोनों कंट्रीज के ट्रेड रिलेशंस खत्म ही हो जाएंगे. So it assumes that no party will budge and they will end up in being this vicious cycle where they eventually end up banning everything that comes from a particular country. और साथ में क्या होगा कि अच्छा तो इसके साथ साथ फिर ये बोल रहे हैं कि अब लेकिन इसमें एक चीज है, मैंने तो दो कंट्रीज का एग्जांपल लिया था, ये बोल रहा है नो कंट्री वुड ट्रेड विद एनी अदर. तो इसमें फिर एक और चीज भी आ गई कि हर कंट्री, ये तभी होगा ना जब हर कंट्री किसी ना किसी दूसरी कंट्री पे बैन लगा रही हो. अगर बैन लगाया ही नहीं, सोचो ये टेक्सटाइल बैन लगता ही नहीं तो ये तो ट्रेड चलता रहता ना. ये पहली शुरुआत ही अगर नहीं होती तो थिंग्स वुड हैव कंटिन्यूड. तो चलिए अब देखते हैं कौन सा हमें सही ऑप्शन मिलता है यहाँ. ए, नो कंट्री एक्चुअली एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ ट्रेड रिटेलिएशन. दिस में लुक okay, but it's tempting, but it is not relevant. Why? Because A gets into actually acting. He's not even saying that this happens. The commentator is not even saying this happens. He is giving you a hypothetical situation here. तो उस hypothetical situation के हिसाब से अगर जाएं तो ये actual है कि नहीं वो irrelevant हो जाएगा आपके लिए. So you can eliminate this.
Then let's look at B. No country should block any of its markets to foreign trade. Once again irrelevant. करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका कोई लेना देना नहीं है. ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो बता रहा है इस थियरी का एक आउटकम ऐसा हो सकता है हाइपोथेटिकली. सी, trade disputes should be settled by international tribunal. Once again irrelevant. D, for any two countries at least one has some market close to the other. Let's negate for any two countries one has no market close to the other. तो अगर मार्केट क्लोज ही नहीं हुई तो इवन इफ दिस थियरी इज ट्रू, अगर वो मार्केट क्लोज ही नहीं हुई तो फिर ये चीज होगी नहीं. सो द मोमेंट आई से नो मार्केट क्लोज टू द अदर, तो फिर तो ये आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये थियरी अगर ट्रू है और मार्केट क्लोज ही नहीं हुई तो फिर ट्रेड रुकेगा ही नहीं. सो इन अ वे द फर्स्ट डोमिनो डज नॉट फॉल, तो ऑब्वियसली बाकी की सारी चीजें भी नहीं होंगी. तो ये नेसेसरी है. जैसे मैं इस पे नो डाल देता हूं, नो मार्केट क्लोज्ड, तो इस थियरी के हिसाब से एक्ट करेंगे तो भी ट्रेड रुकेगा नहीं, क्योंकि इस थियरी में एक प्री रिक्विजिट है, एक प्रिजम्पशन है कि एक कंट्री ने दूसरे पे बैन लगाया हुआ है किसी ना किसी चीज को लेकर के. सो अब even if you believe in this theory, when do you start acting? When some country imposes a ban on some product of yours, when some country closes you out of their market, ये तभी बात आगे बढ़ेगी. So even if you believe in this theory and you're dealing with a country that has not imposed a ban on any of your products, you have no reason to retaliate. तो इसलिए वो बात आगे जाएगी नहीं. तो D नेसेसरी है कि नहीं, हर एक कंट्री ने किसी ना किसी दूसरी कंट्री की एक चीज पे रोक तो लगाई रखी है. उसके बाद जो ये थियरी फॉलो करेगा और दूसरी चीज पे रोक लगाएगा, फिर वो प्रेशर काम करेगा नहीं, तो एक विशियस साइकिल हिट हो जाएगा. ई, कंट्रीज क्लोज देयर मार्केट्स टू फॉरेनर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. इररेलेवेंट है यार इस आर्ग्यूमेंट के लिए. सो देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी योर बेस्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट मी गो अहेड एंड गिव यू the next question. Why don't you go ahead, answer this, and then we will see. Pause the video, solve it, and then join in. Ready? So let's go. Let's check this question. The argument depends on assuming which of the following. तो चलिए argument देखते हैं क्या है. Proposed new safety rules for beach city airport would lengthen considerably the minimum time between takeoffs from the airport. Okay, तो फ्लाइट्स टेक ऑफ करते हैं एयरपोर्ट से, तो आपको रनवे पे कुछ वो लिमिट होती होगी ना कि यार एक प्लेन के जाने के बाद दूसरे प्लेन को जाने देने में मुझे मिनिमम इतना टाइम तो चाहिए, नहीं तो वो सेफ्टी वगैरह या तैयारी उसमें शायद हो नहीं पाए. तो एक सिटी है जिसने नए सेफ्टी रूल्स प्रपोज किए हैं. इन सेफ्टी रूल्स की वजह से वो मिनिमम टाइम आपका बढ़ जाएगा. राइट? सो इन कॉन्सिक्वेंस द एयरपोर्ट वुड बी एबल टू अकोमोडेट 10% फ्यूअर फ्लाइट्स देन करंटली यूज द एयरपोर्ट डेली. तो इसकी वजह से अब 10% फ्लाइट्स कम हो जाएंगी. The city's operating budget depends heavily on taxes generated by tourist spending, and most of the tourists come by plane. Therefore, the proposed new safety rules, if adopted, will reduce the revenue available for the operating budget. तो ये रहा हमारा conclusion. Right? तो क्यों रेवेन्यू ऑपरेटिंग बजट के लिए कम होगा? क्योंकि यार ऑपरेटिंग बजट डिपेंड करता है टूरिस्ट के रेवेन्यू पे, और टूरिस्ट आते हैं प्लेन से. प्लेन्स में हो गई 10% की कमी तो रेवेन्यू में भी हो जाएगी 10% की कमी. सो बेसिकली असम्पशन क्या है? 10% रिडक्शन इन फ्लाइट्स बेसिकली मींस some fewer tourists turning up. Let's say 10% है ना. Let's say 10% fewer tourists turning up. If 10% fewer tourists come, then they will also spend 10% less, and because they've spent 10% less, now you have 10% less for your operating budget. I'm simplifying it, but you get the drift, and that is why this safety rule will affect your operating budget. Okay, तो चलिए देखना शुरू करें. A, there are no periods of the day during which the interval between flights taking off from the airport is significantly greater than the currently allowed. So what does it say? ये बोल रहा है कि यार अगर अब क्या ये इसको इन सेफ्टी रूल्स से लिंक कर रहा है
ये तो ये बोल रहा है देयर आर नो पीरियड्स ऑफ द डे ड्यूरिंग विच द इंटरवल बिटवीन फ्लाइट्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द करंटली अलाउड। तो ये तो आर की बात कर रहा है, ये प्रपोज्ड है। अगर यहां पे ये होता कि आफ्टर प्रपोज्ड सेफ्टी रूल्स द इंटरवल वुड स्टिल रिमेन द सेम, तो ये एटलीस्ट इससे रेलेवेंट होता। हाँ, और अगर वो डालते कि ये बढ़ेगा नहीं, तो फिर ये क्या कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है? इवन इफ आई एस्टैब्लिश दैट लिंक, इट सेज कि नहीं आपका इंटरवल तो बढ़ेगा ही नहीं, तो इंटरवल अगर बढ़ेगा नहीं तो हाउ विल यू बी एबल टू अकोमोडेट फ्यूअर फ्लाइट्स? इट जस्ट सेज A goes on to prove that ना you will be able to able to accommodate a similar number of flights that you had earlier। तो ये तो आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहा है ना, अगर मैं कनेक्ट करता भी हूं इससे तो। एंड एनी ऑप्शन दैट गोज ऑन टू वीकन एन आर्ग्यूमेंट, शुड वी कॉल दैट और शुड दैट बी लेबल्ड एन अजम्पशन? अजम्पशन तो स्ट्रेंथन करेगी, हटा देते हैं। बी, few if any of the tourists who use the beach city airport do so when their main destination is a neighboring community and not beach city itself। so B केवल ये बोलती है कि ये एयरपोर्ट पे खाली वही लोग आते हैं जिनको इसी शहर में आना होता है। हाँ, बट इसको नेगेट करके देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलूं यार क्वाइट अ फ्यू of the tourists who use this airport, their main destination is a neighboring community। so, अब इनका मेन डेस्टिनेशन बीच सिटी नहीं है, मेन डेस्टिनेशन कोई और है, मगर दिस कैन बी एटलीस्ट अ लेओवर। अभी भी ये लोग टूरिस्ट तो हैं ही, अगर ये मेन डेस्टिनेशन नहीं भी है तो वन ऑफ द डेस्टिनेशंस तो है। अब अगर इनका नंबर कम हो जाएगा तो क्या होगा? अगर इनका नंबर कम हो गया तो आपका रेवेन्यू अभी भी कम हो सकता है, और इस वजह से आपका ऑपरेटिंग बजट अभी भी अफेक्ट हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, इवन आफ्टर नेगेशन इट इज पॉसिबल फॉर अस टू अराइव एट दिस कंक्लूजन। तो इसे भी हटा देते हैं। लेट्स लुक एट सी। If the proposed safety rules are adopted, the reduction in tourist numbers will not result mainly from a reduction in the number of tourists who spend relatively little in beach city। तो ये बोल रहा है अच्छा ये आ गया, हाँ टूरिस्ट के नंबर में रिडक्शन होगा, बट इट विल नॉट रिजल्ट मेनली फ्रॉम अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु स्पेंड रिलेटिवली लिटिल। तो ये बोल रहा है कि नहीं इसमें जो, लेकिन जो रिडक्शन आएगा ना, वो रिडक्शन उन लोगों का आएगा हु स्पेंड रीजनेबल अमाउंट्स। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कम पैसा, जो एटलीस्ट एक रीजनेबल अमाउंट स्पेंड करते हैं उनसे आएगा। तो स्ट्रेंथन तो कर रहा है, देखो इट इज डेफिनेटली सपोर्टिंग, बट इज इट नेसेसरी? तो चलो देखते हैं। इफ द प्रपोज्ड द रिडक्शन विल नॉट, तो ये हटा देते हैं। इट विल रिजल्ट मेनली फ्रॉम अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स हु स्पेंड रिलेटिवली लिटिल। तो इसमें दो चीजें हैं। पहला, रिलेटिवली लिटिल। रिलेटिवली लिटिल क्या होता है कि लेट अस से एक एवरेज टूरिस्ट अगर किसी शहर में आकर के यू स्पेंड 100 रुपीज, हाँ अगर ये एवरेज है, और कोई बंदा आकर के 20 रुपीज ही स्पेंड करता है, तो ये रिलेटिवली लिटिल हो गया, रिलेटिवली, राइट। तो अगर ये वाले टूरिस्ट कम हो रहे हैं, जो कम पैसे खर्च करने वाले हैं, इस कैटेगरी को जो बिलोंग करते हैं, तो भी रेवेन्यू में गिरावट तो आएगी ना। even then you are missing out on revenue। ठीक है, the hit is not going to be as high as you would anticipate, but there still be a hit, which means that it will reduce the revenue available, क्योंकि खर्चा तो ये भी कर ही रहे हैं ना। तो आपने देखा, when I looked at C, definitely strengthened, but the moment I negated, I realized that it is not necessary, and if it is not necessary, it is not going to be an assumption। D, increasing the minimum time between takeoffs is the only way to achieve necessary safety improvements without a large expenditure by the city government on airport enhancements। Okay, it is not the only way. So there are other ways, but it is one of the ways, and if this is put into practice, will the revenue reduce or not? हम तो इसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, बाकी अगर होंगे भी तो भी क्या, वो तो एक ऑल्टरनेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक ऑल्टरनेट चीज की तरह आ सकता है। इस आर्ग्यूमेंट में अजम्पशन नहीं है ये। E, the response to the adoption of the new safety rules would not include an increase in the number of passengers per flight। नेगेट करें के अब आपने सेफ्टी रूल्स लगा दिए, फ्लाइट्स कम हो गई ना, इट वुड इंक्लूड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर फ्लाइट। अब फ्लाइट्स चाहे 10% कम है, लेकिन हर एक फ्लाइट में अगर नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ गए तो
Will there be a reduction in the number of tourists coming to beach city now? नहीं. तो हम ये मान करके चल रहे हैं, यहाँ पे एक assumption लेके चल रहे हैं कि fewer flights would mean fewer tourists. But E is that assumption, because the moment we negate it, the moment I say na fewer flights do not mean fewer tourists, so the entire argument falls apart. So we need to assume that fewer flights is equal to fewer tourists landing up at beach city, and that is why E is going to be our best answer. And with that, let me take you over to the next question. Once again, go ahead, solve it after pausing the video, and then join me for a discussion. So are we ready to discuss? Let's go. चलिए देखें. So which of the following is an assumption on which the farmer's argument depends? तो farmer का argument ढूंढते हैं पहले. Worldwide, just 3 grain crops, rice, wheat and corn, account for most human caloric intake. तो अब सबसे ज़्यादा caloric intake जो हम लेते हैं वो इन 3 crops से हमें मिलती है. To maintain this level of caloric intake and also keep pace with global population growth, yields per acre from each of these crops will have to increase at least 1.5% every year. अगर आप चाहते हैं कि जितनी कैलोरिक इंटेक इनसे हमें मिल रही है अभी तक उतनी ही मिलती रहे, कंसिडरिंग कि यार ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपको यील्ड बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी इनकी. प्रोडक्शन भी नहीं, मतलब अभी जितने एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है उतने एरिया में कल्टीवेट करेंगे, मगर उस एरिया से हमें जो यील्ड मिल रही है, जो फसल मिल रही है नेट, उसे कम से कम 1.5% हर साल बढ़ाना है, गिवन दैट द सप्लाई ऑफ कल्टीवेटेड लैंड इज डिमिनिशिंग. कि आपके पास कल्टीवेटेड लैंड की सप्लाई उल्टा कम होती जा रही है, तो आप और नई नई जगहों पे फसल नहीं उगा पाएंगे, आपको यील्ड पे ही काम करना पड़ेगा. Therefore, the government should increase funding for research into new ways to improve yield. तो यहाँ पे ये फार्मर का कंक्लूजन, भाई सरकार को रिसर्च में पैसा बढ़ाना चाहिए. किस चीज की रिसर्च? उस चीज की रिसर्च जो बताए कि कैसे यील्ड बढ़ाई जा सकती है, पर एकड़ यील्ड बढ़ाई जा सकती है राइस, व्हीट और कॉर्न की. तो स्टार्ट करते. A, it is solely the government's responsibility to ensure that the amount of rice, wheat and corn produced worldwide keeps pace with global population growth. तो solely नहीं यार, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम इससे है. इसे गवर्नमेंट शुड, मे बी अदर्स ऑल्सो शुड. सो इट इज नॉट सोनली द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं, इट इज नॉट सोनली द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब भी हम बोल सकते हैं ना गवर्नमेंट शुड इंक्रीज. आई मीन अगर वो इकलौते नहीं हैं तो भी, और स्टेक होल्डर्स हैं तो भी, इनकी भी तो जिम्मेदारी बनेगी तब भी. तो ए के नेगेशन के बाद भी आप देख रहे हैं इसका आर्ग्यूमेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा. सो वी कैन डेफिनेटली गो अहेड विद एलिमिनेशन ऑफ ए. बी, increasing government funding for research into new ways to improve the yields per acre of rice, wheat and corn crops would help to increase total worldwide annual production of food from these crops. हाँ, मान के चल रहे हैं ना, हम चाहते हैं क्या? हम तो चाहते हैं कि यील्ड बढ़े ताकि ज्यादा मिले. सो व्हेन यू से गवर्नमेंट शुड इंक्रीज फंडिंग, तो इसमें assumption है ना दैट एन इंक्रीज इन द रिसर्च फंडिंग बाय द गवर्नमेंट is likely to lead to a higher yield and therefore a higher availability of these food crops. तो अगर मैं ये इसको नेगेट कर दूं, would not help, कि अगर ये हेल्प करेगी नहीं रिसर्च, तो फिर तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही एलिमिनेट हो जाएगा. सो दिस इज डेफिनेटली नेसेसरी. आगे देखते हैं. इंक्रीजिंग द यील्ड्स पर एकड़ ऑफ राइस, व्हीट एंड कॉर्न इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंक्रीजिंग द यील्ड्स पर एकड़ ऑफ अदर क्रॉप्स. इररेलेवेंट टू दिस आर्ग्यूमेंट. Current levels of funding for research into ways of improving grain crop yields per acre have enabled grain crop yields per acre to increase by more than 1.5% per year worldwide. तो ये तो बोल रहा है यार, अभी ऑलरेडी ये इसको वीकन कर रहा है कि ऑलरेडी जो रिसर्च चल रही है वो इससे ज्यादा ग्रोथ ला ही रही है, तो फिर आपको अलग रिसर्च की तो जरूरत ही नहीं रही. सो दिस एज इट इज वीकन्स इट. आप हटा दीजिए ई. इसको नेगेट करेंगे तो इनफैक्ट सपोर्ट करेगा ये आर्ग्यूमेंट को, जबकि नेगेट करने के बाद आर्ग्यूमेंट शुड फॉल अपार्ट. ई, इन कमिंग डेकेड्स राइस, व्हीट एंड कॉर्न विल बिकम अ माइनर पार्ट ऑफ ह्यूमन कैलोरिक इंटेक अनलेस देयर इज अ गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च टू इंक्रीज देयर यील्ड्स पर एकड़. ओके, सो अनलेस क्या होता है? इफ नॉट. तो मैं खाली इफ लगा देता हूं, नॉट नहीं लगाता हूं. हाँ, अब देखते हैं. नेगेट हो गया ये. सो इन कमिंग डेकेड्स दीज विल बिकम, या एक्चुअली इफ वाले साइड को नहीं छेड़ते. इफ देयर इज नॉट government funded research in coming decades, rice, wheat and corn will not become a minor part.
तो ये क्या बोल रहा है, अगर गवर्नमेंट की रिसर्च नहीं है तो ये माइनर पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये तो बोल रहा है गवर्नमेंट की रिसर्च इनको माइनर पार्ट बना देगी, तो ये तो जो इंटेंडेड एम है उसके अगेंस्ट चला गया, तो इसलिए ये भी हटा दे। तो आपके पास बचा क्या, बी, एंड दैट इज द वन दैट यू कैन गो अहेड एंड mark as your answer. So that's your assumption based questions. And before I leave, if you need to reach out to me, here's a group that you can use, and I would like to leave you with a particular thought. To think is easy, to act is difficult, to act as one thinks is the most difficult of all. तो हमेशा हम हर रोज सोचते हैं ना, एक तो सोचना तो ऐसा करेंगे, बट टू एक्ट, किसी चीज पे एक्शन लेना, काम करना, वो थोड़ा चैलेंजिंग है। एंड टू एक्ट एज वन थिंक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल। अपनी एक्शन को अपनी थिंकिंग के साथ कंसिस्टेंट रखना वो और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। सो दैट्स अ चैलेंज फॉर यू, फॉर मी एवरी डे, कि हम अपने एक्शंस को हमने जो सोचा उसके साथ अलाइन कर पाए। एंड इफ यू कंटिन्यू टू डू दैट, आई एम श्योर वी रीच समथिंग or create something amazing. So that's it from me in this particular session. I'll see you in the next one. Until then, keep working hard, and in case there is anything that you need to know, if there is any way in which you think I can help you, make sure that you drop it down in the comments below and I'll get back to you. Have a great day ahead. Until the next one.